Good morning, dear students. Welcome to Value Education class. Students, did you complete the notes of Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand and Dr. APJ Abdul Kalam? We have discussed about all these great personalities in our earlier videos, and I told you to make notes of important points of all the three personalities. That's your homework, students. You need to complete that. Today we will start with our SEM 2 chapters and will begin with lesson number 7 on page number 28 of our textbook. Okay. In this chapter, we will be learning that how we can serve our country and we can be good citizens. We have some duties and responsibilities. How are we supposed to fulfill them? So all these points we will be discussing in this chapter, students. Let's us begin. Let us read out some slides first and then we will move to the textbook part. So how can you be a good citizen? What exactly is a good citizen? We all belong to our country, India. So we are the citizens of our country. We are all Indians, right? Whenever you go out of country or somewhere or anyone asks you about your nationality, your answer is, I am an Indian. So being an Indian, you need to have a brief idea about your responsibilities as a citizen of your own country. A good citizen is the one who's honest, who has compassion for others, who has courage, as well as he is or she is ever ready to take some or the other responsibilities. So what does these words exactly mean? Now let us discuss some points regarding how you can be a good citizen. Now, to become a good citizen, you need to be very active in your community. That means आपके आजू बाजू क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी सिटी में क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए. आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए. सो यू नीड टू बी एक्टिव इन योर कम्युनिटी. सेकेंडली, यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी. आपको हमेशा लोग आप पर भरोसा करें ऐसा होना चाहिए. वो कब होगा? जब आप झूठ नहीं बोलोगे, जब आप सही चीजें करोगे, जब आप गलत चीजें नहीं करोगे. एट दैट टाइम पीपल विल कंसिडर यू टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, और तब वो आप पे विश्वास करेंगे. तो ये सब छोटी छोटी चीजें करनी. इट डजंट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मेक अ मिसाइल फॉर आवर कंट्री एंड यू आर गोइंग टू लोड इट ऑफ. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू बी अ गुड सिटीजन. यू नीड टू डू small things which are correct and in a proper direction. Okay students, you need to follow the rules and laws. ट्रैफिक रूल्स है, छोटे मोटे जो भी रूल्स है वो सब आपको फॉलो करने हैं. ओके. रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स. यू शुड give respect, then only you will get respect. So you need to respect others and also respect the rights of others. Fine. Then be informed about the world around you. So whatever is going on around you, whatever right or wrong is going on, that all you should be knowing. So you need to be active regarding these things. Fine. Then you need to respect the property of others. What does it mean? हमारी चीज होती है, कोई भी तो हम संभाल के रखते हैं, राइट? किसी को देते तो उसको भी बोलते भाई तोड़ना मत, अच्छे से यूज करना, whatever. लेकिन अगर हम भी किसी की चीज लाते तो we need to take care of that particular thing. That means we need to respect the properties of other. ऐसा नहीं कि हमारी चीज नहीं है तो तोड़ दो, फोड़ दो. It's not like that. Even if it belongs like public property or it belongs to government, then also we need to take care of it. These all are the things which a good citizen must do. Be compassionate. That means you need to be kind and polite to everyone. देखो, अगर आप kind नहीं हो, आप polite नहीं हो, आप अच्छे से बोलते नहीं हो, तो कोई भी आपके पास बात करने आएगा ही नहीं. बोलेगा भाई उसके पास जाएंगे तो he will start shouting, रहने देना, उससे बात नहीं करनी. So we need to be compassionate, we need to be polite, right? We should take up the responsibility for our actions. मतलब अगर आपने गलती की है तो भी उसको मान लो, अच्छा काम किया है तो भी मान लो. अच्छा काम तो सब मान लेते हैं, अच्छा काम तो मैंने किया है, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो वो भी हमें मान लेनी चाहिए, राइट? और अगर हम कहीं तोड़ फोड़ कर देते हैं तो उसको छुपाने की बजाय हमें मान लेने का कि हाँ मेरे से हो गया, दूसरी बार नहीं होगा. सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू डेवलप इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड सिटीजन. देन यू शुड बी अ गुड नेबर. अब हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनके साथ तो अच्छे से ही रहना पड़ेगा. वी कैन नॉट जस्ट एवरी टाइम फाइट विथ आवर नेबर्स. वी कैन
शेयर थिंग्स विद देम, वी कैन बोरो थिंग्स विद देम। बोरो कर ली फिर रिटर्न करने का, रखने का, ऐसा नहीं करने का कि नेबर के पास गए कोई चीज ले ली और फिर उस बेचारे को रिटर्न ही नहीं किया, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। व्हेनेवर यू बोरो समथिंग फ्रॉम योर नेबर्स यू आर सपोज टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर थिंग बैक, ओके। सो यू नीड टू हैव गुड रिलेशंस विथ योर नेबर, क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम में होते तो हमारे नेबर्स ही होते हैं फर्स्ट हेल्पर्स, वो ही भाग के आते हैं हमारे पास, राइट, हमारी हेल्प करने के लिए। सो यू शुड बी अ गुड नेबर, यू शुड नॉट फाइट विद द नेबर्स. And the 10th point says you should protect the environment. Now this is very important, students. You should protect the environment. That means what? Whenever someone is cutting a tree, you'll go run and say don't cut the tree. वो possible नहीं है, right? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम नए पेड़ उगा सकते हैं। हमारे आजू बाजू जो छोटे मोटे झाड़ है, पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। हमारे घर में छोटे मोटे पौधे उगा सकते हैं, जितना हो सके एक प्लांट उगा के उसका पूरा ध्यान रखने का जब तक वो बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाँ पेड़ उगा देते हैं, आज बर्थडे चलो पेड़ लगा देते हैं, एंड देन यू फॉरगेट, बर्थडे था तब लगा दिया या कोई अच्छा ओकेजन था तब वृक्षारोपण कर दिया, फिर उसके बाद में ध्यान नहीं दिया, वो जी रहा है, मर गया, कोई उसे काट के ले गया, खराब हो गया। तो व्हेनेवर यू डू समथिंग, डू इट एट द फुलेस्ट, पूरी तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि दिवाली है तो क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन सब फोड़ते ही हैं बिकॉज इट्स फन, लेकिन वो अपने एनवायरमेंट को कितना डैमेज करता है वो आप लोगों को पता नहीं है। यू शुड नो दैट affects the air a lot, even small creatures die because of bursting sounds. जो छोटे मोटे बेचारे जीव होते हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा होता है, उनके लिए दिवाली तो मतलब इट्स लाइक अ कर्स टू देम, राइट। वो बेचारे आवाज से ही मर जाते हैं, और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है इन सब चीजों से। सो वाई टू बर्स्ट क्रैकर्स एंड वेस्ट मनी इन दैट? क्या करने का, पैसे जो मम्मी और पापा हार्ड वर्क करके अर्न करते हैं उससे फटाके लेके आने का, एंड देन व्हाट वी डू, वी स्प्रेड पोल्यूशन बाय स्पेंडिंग आवर मनी। इज इट करेक्ट? आप खुद ही सोच के देखो ना, क्या फन आता है, कहाँ इतनी जोर जोर से फटाका फोड़ के आपको क्या फन आता है स्टूडेंट्स, राइट। इससे अच्छा आप जितने के फटाके ले रहे हो ना, उससे अच्छा कुछ खा लो या किसी गरीब को डोनेट कर दो, राइट। यू कैन डू सम गुड थिंग्स, हर बार आप कुछ अच्छा कर सकते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ड्यूरिंग दिवाली, यू कैन स्पेंड अ बिट ऑफ मनी इन द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज पता है आपको क्या होता है? ऑर्फनेज मतलब वहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, राइट। गरीब बच्चे होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। तो वो लोगों ने तो दिवाली कभी देखी नहीं, तो आप लोग वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हो, वहाँ पे जाके लोगों को मिल सकते हो कि वो लोग कैसे रहते हैं और आप लोग कितनी अच्छी कंडीशन में हो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। यू नीड टू चेंज दिस, राइट। तो ये प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज द रियली बेसिक नीड टुडे। अभी आप देखो लॉकडाउन था, सब लोग अपने घर में थे, तो गंगा, यमुना, ये सब रिवर्स कितने प्योर हो गए, उसमें कितना प्योर पानी बह रहा था। एलिफेंट्स और ये सब जो जानवर है वो भी सब कितने आराम से घूम रहे थे। हाँ, तो ये नेचर है, नेचर सबकी है, सिर्फ हमारी नहीं है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए, राइट। सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज द बेसिक नीड टुडे। हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, और उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट उगाना है, नहीं। यू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड ना, अपने आजू बाजू ग्रीनरी करो, राइट। यू कैन चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। इंस्टेड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स यू कैन डोनेट दैट मनी, यू कैन ईट गुड फूड, you can buy new clothes, you can do something which is very good instead of burning crackers, bursting them and creating air pollution, right? So this is my thinking, and I think you should also think like this, right? So these are the ways in which you can help out the environment, you can protect the environment and save nature, because nature is our mother and it gives lots of things. So students, you need to understand that in order to become a good citizen, you need to fulfill small responsibility. बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना है, बट छोटा छोटा से आपको स्टार्ट करना है, राइट। जैसे यू कैन कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आपकी सोसाइटी, आपका घर, सब कुछ आप क्लीन रख सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर एनिमल को ट्रबल में देखते हो या उसको चोट लगी है, तो यू कैन कॉल ऑन हेल्पलाइन, वो आके उन एनिमल्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। So all these kinds of things we are supposed to do. These small things will lead to a big goal, right? तो जो भी बड़े काम होते हैं ना, वो छोटे छोटे से स्टार्ट होते हैं। तो we should also start with such kind of small things, and
we should learn our responsibility towards ourselves, our society, as well as our environment. When you do this, you automatically become a very, very, very good citizen. Now we'll move ahead to textbook part and read out what is given in our textbook. So let us start with our textbook part.